السلام علیکم۔ اچھا بھائی، سب سے پہلے تو بقرعید کی مبارکباد۔ ہاں بھائی، بہت بہت مبارکباد۔ خاص طور پر بچوں کو عید مبارک، کیونکہ عید کی سب سے زیادہ خوشی بچوں کو ہوتی ہے۔ لیکن بقرعید کی سب سے زیادہ خوشی سدھو بھائی کو ہوتی ہے۔ جی نہیں، سلطانہ باجی کو ہوتی ہے۔ عید کی سب سے زیادہ خوشی سلطانہ باجی کو ہوتی ہے؟ وہ کیسے؟ عابدی بھائی، یہ نہ پوچھئے، یہ پوچھئے کہ یہ جو اتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ سلطان باجی کی طرف دیکھ لیجئے۔ سدھو بھائی، بقرعید پر تو اونٹ بھی ذبح ہوتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ انکل لاڈلے کی طرف دیکھ لیجئے۔ سدھو بھائی، کیا آپ نے کبھی انکل لاڈلے کی طرف دیکھا ہے قریب؟ جی ہاں، ایک بار دیکھا تھا عیدگاہ میں، میری ٹوپی گر گئی تھی۔ اوہو سدھو بھائی، وہ آپ کی ٹوپی تھی؟ میں سمجھا کسی اور کی تھی، میں اس میں 10 پیسے ڈال کر آگے بڑھ گیا تھا۔ سلطانہ باجی، آپ کیوں خاموش بیٹھی ہیں؟ کچھ آپ بھی بقرعید پر روشنی ڈالیے۔ نہیں، پہلے آپ اچھی طرح روشنی ڈال لیجئے، میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ ارے صاحب، بقرعید تو سلطانہ باجی کا پسندیدہ تہوار ہے۔ وہ جس طرح کوئی مثال کے طور پر 20 سال کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے زندگی کی 20 بہاریں دیکھی ہیں، اسی طرح سلطانہ باجی کہتی ہیں کہ میں نے زندگی کی 60 بقرعیدیں دیکھی ہیں۔ اچھا، جی ہاں، اور جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، سلطانہ باجی کہتی ہیں میں نے دیس دیس کا بکرا کھایا ہے۔ واقعی؟ جی ہاں، ایک بار حکیم صاحب نے مشورہ دیا کہ بیٹی سلطانہ، بقرعید کے بکرے ذرا ہاتھ روک کر کھایا کرو، تو سلطانہ باجی نے یہ شعر پڑھا، اب بکروں سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ واہ، اچھا شعر ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، ایک روز بقرعید کا چاند دیکھ کر یہ شعر پڑھ رہی تھیں، بکرا بکرا کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو اگر بکرا نہیں کھاتی نہ کھا، دمبا تو کھا۔ ویسے یہ بھی اچھا ہے۔ ارے صاحب، سلطان باجی کو بکرا اتنا پسند ہے کہ مرزا غالب کا اچھا خاصا شعر تباہ کر کے رکھ دیا۔ کہنے لگی ہیں اور بھی دنیا میں جناور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ بکرے کا ہے انداز بیاں۔ حیرت ہے بھائی، سلطانہ باجی ہمیشہ بکرے کے شعر کہتی ہیں، بکری کے شعر کبھی نہیں کہتی۔ ارے صاحب، کہتی ہیں اور خوب کہتی ہیں۔ ایک مرتبہ بقرعید کے روز سارے محلے سے بکریوں کا گوشت آیا، اسے سامنے پھیلا کر کہنے لگی بکریاں اتنی پڑی مجھ پر کہ بکرا ہو گئی۔ سلطانہ باجی کب تک چپ رہیں گی؟ جیتے رہیے انکل، جیتے رہیے، خوب یاد دلایا۔ ایک روز بقرعید پر سلطان باجی نے بکریوں کا ایک اور شعر پڑھا، وہ کیا تھا؟ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا بکریوں کا۔ اچھا شعر۔ سدھو بھائی، آپ کی تقریر ختم ہو گئی؟ جی ہاں۔ اب میں کچھ عرض کروں؟ اے صاحب، آپ کیا کہیں گی؟ جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک قصہ سناؤں؟ جی، کون سا قصہ؟ وہ جو آپ کے گھر میں بکرے کی قربانی ہوئی تھی۔ کون سی قربانی ہوئی تھی؟ سلطانہ باجی، کیا سدھو بھائی کے گھر میں بھی قربانی ہوئی تھی؟ جی ہاں۔ کب؟ کیسے؟ ارے صاحب، اس کا بھی بہت دلچسپ قصہ ہے۔ ہمیں بھی سنائیے۔ خدا کی شان، آج تو دشمن واقعہ بھی واقعہ سنانے چلی ہیں۔ کون سا واقعہ سنائیں گے آپ؟ سنتے جائیے، گھبراتے کیوں ہیں؟ اللہ سلطانہ باجی جلدی کیجیے نا، ہم تو واقعہ سننے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں۔ ارے چھوڑیے بھی، مجھے پتا ہے وہ قصہ۔ 1 سال میں نے قربانی نہیں کی تھی، اور شیخ صاحب کے گھر سے آنے والا گوشت نواب صاحب کے ہاں، نواب صاحب کا گوشت صدیقی صاحب کے ہاں، صدیقی صاحب کا گوشت وکیل صاحب کے ہاں، وکیل صاحب کا گوشت رضوی صاحب کے ہاں، اور رضوی صاحب کا گوشت شیخ صاحب کے گھر بھجوا دیا تھا۔ وہ سب سمجھ رہے تھے کہ میرے گھر قربانی ہوئی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے جسے محترمہ افسانہ بنانا چاہ رہی ہیں۔ معاف کیجیے، اتنے گھسے پٹے قصے تو میں ہر ہفتے سنا سکتی ہوں۔ میں تو آپ کے گھر بکری کی قربانی کا بالکل نیا قصہ سناؤں گی۔ کون سا سنائیں گے آپ؟ میں کیوں بتاؤں؟ اچھا، ہمیں تو بتائیں گی نا؟ ہاں، سنیے جناب، بقرعید سے 1 روز پہلے سدھو بھائی قربانی کے لیے بکرا خریدنے نکلے۔ جی۔ گھر سے نکلتے ہی ہر ایک کو بتانا شروع کر دیا، کیا کہ بکرا خریدنے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے
अब वह बहुत कम रह गया है, बीच में सिर्फ एक रात है, सोचता हूँ एक बकरा खरीद लाऊं। फिर कहने लगे कि बकरा इस सर पर आ गई है, 200 रुपए का बकरा अब 500 में मिलेगा। हाँ। मगर भाई मजबूरी है, अब तो 1000 रुपए का मिला तब भी लाना ही पड़ेगा। ये कहते हुए सिद्धू भाई बकरा मंडी की तरफ चले गए। कुछ देर बाद रात हो गई, हम लोग सब सोने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक सिद्धू भाई के घर से बकरे की आवाजें आने लगी। मोहल्ले वालों ने खुश होकर एक दूसरे से कहा, लो भाई सिद्धू मियाँ बकरा ले आए। मैं भी दिल ही दिल में मुस्कुराई कि सिद्धू भाई क्या छाट कर बकरा लाए हैं, तो उसकी आवाज भी अच्छी खासी सिद्धू भाई जैसी है। थोड़ी देर बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? सुल्तान बाजी, मैं हूँ, मैं। कौन? अरे मैं। ओहो सिद्धू भाई, ये आप हैं। मैं तो समझी थी कि आपका बकरा अंदर आना चाहते थे। कहिए क्या बात है? सुल्तान बाजी, बात यह है कि कल सुबह की कुर्बानी के लिए बकरा ले आया, हम्म। लेकिन बेचारा भूखा मालूम होता है। आप अपने दुम्बे के लिए जो घास लाई थी उसमें से थोड़ी सी घास दे दीजिए। मुझे यकीन है आपका बकरा भूखा नहीं है। देखिए इस वक्त वो खामोश है। अरे साहब, वो तो मैंने अपने गुलदान के सारे गुलदस्ते सामने डाल दिए हैं, वही खा रहा है, इसलिए खामोश है। अच्छा तो ये लीजिए, थोड़ी सी घास ले जाइए। मैं ज्यादा घास नहीं दे सकती वरना मेरा दुम्बा भूखा रह जाएगा। लाइए, शुक्रिया। बस तो जनाब सिद्धू भाई घास ले गए, लेकिन शायद वो घास भी कम थी, क्योंकि सिद्धू भाई का बकरा भूखा रहा और मैं करता रहा। काफी रात हो गई और नींद मेरी आंखों से दूर थी। मुझे उस बेचारे बकरे की फिक्र थी जो इतनी रात को बोल रहा था। शायद उसके पेट में दर्द था, क्योंकि एक रात खुद सिद्धू भाई के पेट में दर्द था तो वो भी ऐसे ही चिल्लाए थे। जब जनाब काफी रात हो गई तो मुझसे नहीं रहा गया। दीवार पर सीढ़ी लगाई, ऊपर चढ़कर सिद्धू भाई के दालान में झांका तो अजब मंजर देखा जनाब। क्या देखा? मैंने देखा कि सिद्धू भाई लैंप जलाए मजे से जासूसी डाइजेस्ट पढ़ रहे। थोड़ी थोड़ी देर बाद मुंह उठाते हैं और कहते हैं मैं। मगर क्यों? ताकि मोहल्ले वालों को यकीन आ जाए कि सिद्धू भाई के घर में बकरा मौजूद है, और अगले रोज जब ये इधर का गोश्त उधर और उधर का गोश्त उधर भेजें तो सब समझे कि इनके घर कुर्बानी हुई है। अल्लाह, सिद्धू भाई कितने चालाक है। सुल्ताना बाजी, बहुत दिलचस्प वाक़या था। आए है, मगर अभी खत्म कहाँ हुआ। दिलचस्प किस्सा तो अब शुरू होने वाला है। सुनाइए। सुनिए जनाब, फिर क्या हुआ कि ईद की सुबह लोग नहा धोकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने ईदगाह चले गए। जब सिद्धू भाई को यकीन हो गया कि सब चले गए हैं तो आखिर में ये खुद भी चले गए और इनके घर में सन्नाटा हो गया। कुछ देर बाद लोग नमाज पढ़कर वापस आए तो सिद्धू भाई का बकरा दोबारा बोलने लगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। दुम्बा ज़बह करने के लिए अजमेरी कसाई आ गया था। कौन है? ओहो अजमेरी। हाँ सुल्ताना बीबी, लो मैं आ गया। सोचा कि सबसे पहले तुम्हारा जानवर ज़िबा कर दो। आओ अजमेरी बैठो। उफ, 1 साल में तुम तो वाकई कमजोर हो गए। अरे सुल्ताना बीबी, बुढ़ापा है बुढ़ापा। अब न साफ सुनाई देता है न साफ दिखाई देता है। आंखों पर इतना मोटा चश्मा लगाया है तो जरा जरा सा दिखाई देवे है। अरे वाकई ये तो बहुत मोटा चश्मा है। अरे अब क्या करूं सुल्ताना बीबी, बुढ़ापे में यही होवे है। हाँ। लाओ तो पहले तुम्हारा दुम्बा ज़िबा कर दूं, दूसरे लोग भी मेरी राह तक रहे होंगे। हाँ। मगर सुनो तो, पड़ोस में सिद्धू भाई भी तो बकरी की कुर्बानी कर रहे हैं। कौन? अरे सिद्धू मियाँ? हाँ। अरे मैं तो उन्हें बचपन से जानता हूँ बीबी, उन्होंने आज तक कुर्बानी नहीं की। नहीं अजमेरी, मगर आज कर रहे हैं। कल रात में बकरा खरीद कर लाए थे। और अजमेरी एक काम करो, हाँ? पहले जाकर सिद्धू भाई का बकरा ज़बह कर दो। अरे अभी कर दूंगा, पहले तुम्हारी कुर्बानी तो दे दो। है वो होती रहेगी, पहले तुम सिद्धू भाई के घर जाओ। मगर एक काम करो। वो क्या बीबी? वो ये कि इधर आओ, अपना चश्मा उतार कर मुझे दे जाओ। अरे वो क्यों? है अब बहस ना करो, चश्मा मुझे दे जाओ, मैं तुम्हें 10 रुपए दे दूंगी। भाई हैरत है, लोग रिश्वत देकर इम्तिहान की कॉपी में नंबर तो बढ़ाते हैं, मगर अब रिश्वत देकर चश्मा भी उतरवाने लगे हैं।
अरे लो सुल्ताना बीबी, संभालो मेरा चश्मा, मैं अभी आया सिद्धू मियाँ के घर से। अजमेरी अपने छुरे उठाकर चला ही था कि मैंने दीवार के ऊपर से पुकार कर कहा, सिद्धू भाई, मैंने अजमेरी को आपके घर भेजा है, वो आपका बकरा ज़िबा करने आ रहा है। फिर क्या हुआ? अचानक जैसे बिजली चमकी। हमारे और सिद्धू भाई के दालान के बीच में जो दीवार है उस पर सिद्धू भाई का काला कंबल फैला हुआ था। वो उन्होंने शराब से खींचा। क्यों? कि उसके बाद सिद्धू भाई के घर से बकरे की आवाजें आनी बंद हो गई और कुछ देर शोर सा हुआ, फिर खामोशी हुई। बेचारा बूढ़ा अजमेरी हाँफता कांपता हुआ वापस हो गया। अरे हद हो गई, हद हो गई। क्या हुआ अजमेरी? अरे होना क्या था बीबी, मैं सिद्धू मियाँ के घर में गया। हाँ? आंखों पर चश्मा न होने की वजह से साफ तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उनके आंगन में थोड़ी सी घास पड़ी थी। उसके पास एक काला बकरा बैठा था। मैं छुरी उठाकर उसकी तरफ बढ़ा तो पता है बकरा क्या बोला? क्या बोला? कहने लगा, ये लो 10 रुपए और खुदा के लिए मुझे ज़िबा ना करो। अच्छा भाई, पिछली ईद पर हमने तुम्हें एक दावत दी थी, सिद्धू भाई वाली दावत नहीं बल्कि लिखने की, और ये बताने की दावत कि तुमने ईद कैसे मनाई। हमने वादा किया था कि तुम्हारी ये ख़त हम बकरीद के मौके पर पढ़कर सुनाएंगे, तो वो मौका आज आ पहुंचा है। शाहीन क्लब के सुनने वालों ने ईद कैसे मनाई, उनके कुछ मज़े के ख़त तुम भी सुनो। ये बहुत दिलचस्प खत दीवानगंज रायसन से ताबिंदा गुल ने लिखा है। ईद के दिन हमारे गांव में बारिश हुई। सब ने नए नए कपड़े पहने थे, लेकिन पानी और कीचड़ की वजह से पायचे और नदी नाले सब चढ़े हुए थे। कोई यहाँ रपट रहा था, कोई वहाँ। आम की डार पर कोयल कू कू कर रही थी और ऐसा जी तोड़ के गा रही थी जैसे फिर कभी गाएगी ही नहीं। ईद की खुशी में शायद हर कोई खुश था। गाय बैल ऊंची आवाज़ों में डकरा रहे थे। दूर पहाड़ी दरख्तों पर मोर नाचने की तैयारी कर रहे थे। धूप का कहीं पता न था। काले काले बादलों से आसमान ढका हुआ था। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और गांव के नंग धड़ंग बच्चे पानी में दौड़ते फिर रहे थे। अलबत्ता मुस्लिम बुजुर्ग किसी न किसी तरह नदी पार ईदगाह जा चुके थे और हमारे छोटे भाई बहन अपने नए कपड़े संभाले बड़ी हसरत से आसमान की तरफ देख रहे थे। हम सब ईद के दिन अपने घर के कैदी थे। और ये ख़त फैज़ाबाद यूपी से तहसीन अयूब और रफ़त अयूब ने लिखा है जी। कहते हैं, अरे साहब, जैसी ईद हमने इस बार मनाई वैसी ईद पहले कभी नहीं मनाई। वैसे अगर हम चांद देखने के चक्कर में पड़ जाते तो हमारी ईद शायद 3 दिन बाद होती, क्योंकि चांद साहब इस मर्तबा दिखने में नहीं आए और हम लोगों से 32 रोज़े रखवाने पर तुले हुए थे। यकीन कीजिए, हमारे यहाँ ईद का चांद पूरे 3 दिन बाद दिखाई दिया। उन्हें देखते ही हमारे मुंह से निकला, वाह, आप तो ईद का चांद हो गए। हुआ ये कि हम सब 30वें रोज़े के लिए सहरी खा रहे थे कि अचानक सायरन बजा। हम हैरान थे कि सायरन इतनी जल्दी क्यों बज गया। तो ऐलान हुआ कि किसी इलाके में चांद नज़र आ गया है और आज ईद है। बस फिर क्या था, बाजार धड़ाधड़ खुलने लगे, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे, औरतें घर के कामों में जुट गईं, सेवइयाँ, दही बड़े, छोले, बिरयानी, कबाब बनने लगे, घर की सजावट शुरू हो गई और हमारी छोटी बहन सादिया सुबह 4 बजे ही से ईदी वसूल करने लगी। सुबह सबने नमाज अदा की और शाम होने तक लोग एक दूसरे के घर जाकर खाने की तमाम अच्छी चीजें साफ कर चुके थे। अच्छा, लसबेला से ये खत नाहिदा शाहीन गुजर ने लिखा है। अच्छा। हमारी ईद बहुत अच्छी रही। अब्बू और भाईजान ईद से 2 रोज़ पहले घर आ गए और चांदनी रात को खूब रौनक रही। गानों के जो कैसेट जो पूरे रमज़ान बंद पड़े थे खूब बजाए गए। सब बहनों ने एक दूसरे को मेहंदी लगाई और सो गए। सुबह जो आँख खुली तो मेहंदी वाले हाथ देखते ही याद आ गया कि आज ईद है। जल्दी जल्दी घर की सफाई हुई और भाइयों को गौसल के लिए जगाया गया।
उन्होंने नहाने में देर लगाई तो अम्मी जान ने कहा कि पहले नमाज पढ़ाओ, नाश्ता बाद में कर लेना। मगर भाई जान तो शायद महीने भर के भूखे थे, कहने लगे कि नाश्ता करके नमाज पढ़ने में आसानी होती है। कुछ देर बाद हम यूं ही ज़रा सा बावर्ची खाने का जायज़ा लेने गए तो अम्मी ने खीर पकाने को कह दिया। एक तो शदीद गर्मी, ऊपर से बिजली साहिबा को कोई ज़रूरी काम याद आ गया था। उन्होंने पुरानी दुश्मनी निकाली। इतनी देर में मेहमान आने लगे। ईदी के तबादले हुए। शाम को हम बड़ी शान से अपनी सहेली के घर रवाना हुए। उसका घर करीब आ गया था कि गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। दौड़ते हुए सहेली के घर पहुंचे तो नया मंजर देखा। जी। उनके दरवाजे पर 2 शेर का काला ताला लगा हुआ था। हम रोनी सूरत बनाकर अपने घर की तरफ भागे। कई बार फिसलते फिसलते बचे। कपड़ों का सत्यानाश हुआ। गिरते पड़ते घर पहुंचे तो गजब हो गया। घर वाले दरवाजे पर ताला डालकर कहीं जा चुके थे। अब जो हमने रोना शुरू किया तो बारिश को हरा दिया। इतने में साथ वाले घर का दरवाजा खुला। अंदर से भाईजान निकले और कहने लगे, नाहिदा साहिबा, ये आप पड़ोसी के दरवाजे पर खड़ी क्यों रो रही हुआ ये कि बौखलाहट में हम अपना दरवाज़ा छोड़कर पड़ोस के दरवाजे पर जा पहुंचे। अब तो हंसते हंसते हमारी बुरी हालत हो गई। घर आए तो कपड़े तब्दील करते जाते थे और हंसते जाते थे। तो जनाब हमने ईद यूं मनाई। अच्छा, ये खत पाक पतन शरीफ से मोहम्मद अशरफ गोंदल ने लिखा है। जी। साहब, हमने न सिर्फ रोजे रखे बल्कि पूरे महीने सहरी में कनस्तर बजा बजा कर लोगों को जगाते रहे। उस रोज भी हम बिस्तर से निकले और कनस्तर और एक डंडा लेकर बाहर गली में कूद गए। सुल्तानाबाजी की तरह हमारी भी एक पड़ोसन है जिसने वहीं से आवाज लगाई कि मुन्ने, आज तो ईद है। हमने कहा, अरे छोड़िए खाला, आप तो मजाक करती हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, अपनी अम्मी जान से पूछ लो। जूं ही हम अम्मी जान के पास पहुंचे और उन्हें जगाकर तस्दीक करनी चाहिए तो जवाब में उन्होंने एक थप्पड़ रसीद किया और कहा कि ईद के दिन लोगों को क्यों तंग करते हो। ये तारीख का पहला थप्पड़ था जिसे खाकर हमें खुशी हुई। खुदा खुदा करके सुबह हुई। ईद के बहाने हम खूब नहाए। अम्मी ने हमें एक लुंगी, कड़ा हुआ कुर्ता और खुस्सा पहनने को दिया। हम पहनकर खूब कूदे फांदे और अब्बू के साथ नमाज पढ़ने गए। वहां से आकर सिवैयों पर हमला किया और ये सिलसिला शाम तक चलता रहा। आखिर सिवैयों की जीत हुई और हम थक कर हार कर सो गए। और सांगढ़ से ये खत रुखसाना कंवल और सुल्ताना कंवल ने लिखा है। ईद के रोज हमें सिद्धू भाई बुरी तरह याद आए। ओए होए। हुआ ये कि अम्मी जान ने बहुत मजे की सिवैयाँ और बादाम का हलवा बनाया। दोनों चीजें इतनी अच्छी थीं कि लोग प्लेटें भर भर के खाते रहे। बाद में हमसे कहा गया कि अब हम प्लेटें धोएं। उस वक्त सिद्धू भाई बहुत याद आए। वो होते तो प्लेटें इस तरह साफ करते कि धोने की जरूरत ही अच्छा भाई, तो ये हुआ तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे खत। ऐसे खत लिखने का शुक्रिया। और अब हमें अगले हफ्ते तक इजाज़त दो। खुदा हाफिज।